Start. Hello everyone, this is Dr. Simran Kumari here, and today we are gonna go for more detailed into identification of a protein into a sample. So imagine yourself performing a laboratory experiment and you're given a solution, and it might be they say that it might be a carbohydrate or a protein. So how you're going to identify that what the chemical in it is, and is that a protein or an amino acid, or basically we are going to identify that is it a carbohydrate or RNA or DNA, anything. So remember in the carbohydrate detection test I told you we perform the one test, that is smallish test, the starting test. We usually do it here also. So before moving forward, please do not forget to like, subscribe and comment on this video if you have any queries. Thank you so much. So what we do, we perform first of all Molish test. If for example the Molish test is okay, so about this all, if you're not aware of the Molish test, you can actually watch my carbohydrate detection test. It's a very simple and easily detailed video in with mnemonics. So basically when we perform Molish test, if it comes positive, that means it's all about carbohydrate. Then we have to go along with that video, along with the flow charts, and when to want to remember the whole mnemonic, and when to go, and have to go into the details. But for example the Molish test is negative. Now we know that it is not carbohydrate. Then we have to perform another test here. So for example, before moving towards it, what is a protein? First of all, a protein is actually a macromolecule, and it's a combination of amino acids. Basic? Done? Okay. Amino acids ka what is the general formula? We have a chiral carbon atom here. Okay, so if it's not visible, let's move it with this. We have an alpha carbon over here. It have four different things. The one will have one and will have carboxyl group. The another and will have amine group. The other and will have our H. The fourth one will be our R. This is our side chain, and on the basis of this R, actually it is decided that which kind of amino acid it is. For example, if we have a sulfur containing group here, so it is going to be sulfur containing amino acid like methionine, cysteine. For example, it have an aromatic ring like this benzene ring over here. It is going to be aromatic amino acid. For example, it's going to have, it's a detailed discussion. This is one thing. The second thing we have to study and focus on, that whenever two amino acids combine together, they actually release one amino acid combining with another amino acid makes up a chain, and that is a polypeptide chain. And polypeptide chain can also be known as a protein. Okay, I'm going to tell you the difference. By releasing a water molecule, and the bond between two amino acids is going to be my peptide bond. So basis on that peptide bond, we are going to study that how we're going to identify that. Point number 3. Now the basics, when we go towards the structure, right, the difference between polypeptide and a protein is that protein and polypeptide. Now polypeptide is actually a kind of any amino acid combination which is greater than 100 less than 100 amino acids. For example, insulin, it's a single polypeptide chain. But for example, when I'm assuming protein, it should consist of greater than 100 amino acids. Basic? Done? Okay. Now moving towards another thing, which is the more beautiful thing, I must say. We have to remember one thing when we are discussing protein ke structures. Okay? So there are 4 levels. The first level is going to be the primary structure. Please write it down. Primary structure is actually tells about everything about sequence of amino acids. के एक amino acid A, B, C, D की sequence क्या होगी? Methionine कब होगा? Cysteine कब होगा? What will be the order of amino acids? And the basic thing holding them together will be a peptide bond. So primary structure is all about order of amino acids, and the bond will be peptide bond holding them together. When I'm talking about secondary structure, it is gonna be the structure विच इज़ जब इसी स्ट्रक्चर में फोल्ड्स आ जाएंगे, बेंड्स आ जाएंगे. इसके 2 टाइप्स होते हैं मोस्ट कॉमन, बीटा हेलिक्स एंड अल्फा. अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड. इसकी अलग एक वीडियो होगी, बट अभी मैं ब्रीफली बता रही हूँ. अल्फा हेलिक्स इज मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट स्टेबलाइजिंग फैक्टर. सेकेंडरी में ऐसे कौन से सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बॉन्ड्स होंगे विच विल एक्चुअली स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर. सो ये तो प्राइमरी हो गए पेप्टाइड. अब इस सेकेंडरी में हमारे पास सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जी में हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स होंगे वो होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड हमारे पास वैन डर वाल्स इंट्रैक्शंस. ठीक है, अब हमारे पास टेरिशरी की बात करते हैं. टेरिशरी इज़ एक्चुअली इसी को ही अगर हमने और फोल्ड्स और बेंड्स दे दिए, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में बना दिया, एंड उसमें हमारे पास 4 और बॉन्ड्स आ जाएंगे, जो कि हमारे पास होंगे कौन से बॉन्ड्स? हमारे पास होंगे नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स एंड हाइड्रोफिलिक बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड्स होंगे हमारे पास, डाइसल्फाइड ब्रिजेस होंगी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे. सो इनके सारी बॉन्ड्स आ जाएंगे तकरीबन. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, इट इज़ बेसिकली जब 1 या 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स टुगेदर, जब ये एक की बात हो रही थी अब तक, ठीक है, जब ये एक स्ट्रक्चर बिल्कुल कॉइल्स वाला दूसरे कॉइल वाले स्ट्रक्चर के साथ मिलेगा और डिफरेंट बॉन्ड्स बनाएगा, उसे हम क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहते हैं. मोर इनटू 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड द बॉन्ड्स इन दैम. अब हमें ये बात समझनी है कि एक प्रोटीन
प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि अंदर हमें कोर को हाइड्रोफोबिक रखना है और बाहर इसे रखना है हाइड्रोफिलिक। क्यों? तो अगर हाइड्रोफोबिक रखेंगे तो अंदर कौन से बॉन्ड्स रखेंगे हम लोग और बाहर कौन से बॉन्ड्स रखेंगे? हाइड्रोफिलिक बॉन्ड्स हमारे बाहर होंगे, सो दैट वो सोल्यूबिलिटी शो करें हमारे पास। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अंदर का कोर स्टेबलाइज रखने के लिए हमें हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स अंदर की तरफ से यूज़ करने पड़ेंगे। बाहर की शेल होगी हमारे पास जो हाइड्रोफिलिक बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, वी डन ओवर हियर। कहने का मकसद ये था, द रीज़न फॉर टेलिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स बिफोर डिटेक्शन टेस्ट वॉज द वेरी सिंपल थिंग, एंड द रीज़न इज दैट फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग एनी काइंड ऑफ डिटेक्शन, आई एम एक्चुअली यूजिंग द वल्नरेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोटीन है, फॉर एग्जाम्पल मैं केसीन और सिजीन आप कह सकते हो, इन मिल्क जो प्रोटीन होती है, इफ़ यू गोना आइडेंटिफाई दैट प्रोटीन, टू आइडेंटिफाई दैट प्रोटीन आई रियली नीड टू उसकी कमजोरी पकड़नी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हर एंजाइम का एक पीएच होता है, राइट? हर प्रोटीन का एक पीएच होता है जिस पर वो काम करता है, जिस पर वो डीनेचर हो जाता है। अदरवाइज अगर फॉर एग्जाम्पल केसीन का एक वल्नरेबिलिटी पॉइंट है 4.6 pH, मैंने उसे वो प्रोवाइड किया, वो डीनेचर हो जाएगी। दैट मीन्स व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना गिव देम डिफरेंट काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटीज़। फिर वल्नरेबिलिटी दे के मैं हर किसी की कमज़ोरी पकड़ूंगी और हर किसी की कमज़ोरी पकड़ के मैं उसका टेस्ट करूँगी, सो दैट मुझे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये किस कमज़ोरी पे कौन सा प्रोटीन आया। अभी आई एम गोना गो फॉर द फ्लो चार्ट, यू आर गोना गेट इट वेरी इजीली, डोंट वरी। द सेकंड थिंग आई वांट टू टेल यू, फॉर एग्जांपल आई एम गोना गिव देम द वल्नरेबल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर मैं इंक्रीज कर दूंगी, मैं पीएच चेंज कर दूंगी। व्हाट डू यू गाइस थिंक? प्रोटीन इज एक्चुअली डीनेचर, राइट? व्हाट विल हैपन टू दिस सोल्युबिलिटी व्हेनेवर प्रोटीन इज डीनेचर्ड और द वल्नरेबिलिटी आर गोइंग टू द एक्सट्रीम्स? द सोल्युबिलिटी इन डिक्रीजेस और डिक्रीज हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3, व्हाट डू यू थिंक विच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स आर एक्चुअली सॉर्टेड आउट? कौन से स्ट्रक्चर्स वो लूज करेगी प्रोटीन आफ्टर डीनेचरिंग और कौन से स्ट्रक्चर्स वो रिटेन रखेगी? रिमेंबर ऑलवेज गाइज, सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स विल बी लॉस्ट बिकॉज दे आर ऑल अबाउट द बॉन्ड्स। वो बॉन्ड्स अनस्टेबलाइज्ड बॉन्ड्स ऑलरेडी, वीक बॉन्ड्स हैं, तो उन्हें मैं क्या करूँगी? व्हेन आई एम गोना गिव देम द डिफरेंट कंडीशंस, दीज बॉन्ड्स आर गोना गो एंड गेट लॉस्ट, बट द वन थिंग दैट विल रिमेन विद द प्रोटीन इज द प्राइमरी थिंग, बिकॉज प्राइमरी वी ऑल न्यू दैट प्राइमरी is actually the order of amino acids, the sequence of amino acids. So for example अगर amino acids की sequence मेरे पास सेम रहेगी, वो तो सेम रहनी है चाहे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर लें, whatever I'm gonna do with that, denature कर दूँ, I'm gonna make sure कि प्रोटीन primary structure will be retained. ठीक है? Okay. That's it. Now for the protein identification, what we do is the first test we actually will go towards will be our Buret test. ब्यूरेट टेस्ट में हमारे पास अगेन बेनेडिक्ट टेस्ट, ब्यूरेट टेस्ट बिल्कुल सिमिलर साउंड होता है, राइट? बिकॉज हमने कार्बोहाइड्रेट के लिए जो बेनेडिक्ट टेस्ट यूज़ किया था उसमें हमने कॉपर सल्फेट यूज़ किया था। सिमिलरली हम यहाँ पे भी कॉपर सल्फेट यूज़ करेंगे, समथिंग लाइक कॉपर, एंड हम उसका रिड्यूसिंग यूज़ करेंगे एजेंट दैट। एंड ब्यूरेट टेस्ट में जो हम कॉपर यूज़ करेंगे उसका एक काम होता है, वो पेप्टाइड बॉन्ड को आइडेंटिफाई करता है। तो दैट मीन्स इफ आई एम हैविंग ओनली वन अमाइनो एसिड इन माई सैम्पल, विल माई ब्यूरेट विल कम, द टेस्ट विल कम पॉजिटिव? नो, क्योंकि एक अमाइनो एसिड है। पेप्टाइड बॉन्ड तो तब होगा जब 2 अमाइनो एसिड होंगे और एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होगा, एक बॉन्ड होगा। तो अगर ब्यूरेट टेस्ट इज पॉजिटिव, इट विल कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर होगा मतलब प्रोटीन प्रेजेंट है, बात खत्म। वॉयलेट कलर नहीं होगा, ब्यूरेट टेस्ट नेगेटिव है, मतलब या तो प्रोटीन नहीं है या तो अमाइनो एसिड भी तो हो सकता है ना। मैंने कहा ब्यूरेट टेस्ट कैन ओनली बी डन जब हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड होगा। यहाँ पे क्या हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड है? हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है, तो इट कैन बी अमाइनो एसिड्स। अगर फॉर एग्जांपल हम इजीली लेकर जाते हैं, अगर हमारे पास हमारे ब्यूरेट टेस्ट इज नेगेटिव एंड वी हैव टू डिटेक्ट कि अच्छा अमाइनो एसिड डिटेक्ट करना है हमें, तो उसके लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं। जैसे सल्फर का आर चेन हमारे पास अगर सल्फर कंटेन करती है, जैसे मिथ्योनिन, सिस्टीन, उसके लिए सल्फर कंटेनिंग टेस्ट होते हैं हमारे पास हॉपकिंस कॉल टेस्ट होता है फॉर ट्रिप्टोफैन, हमारे पास मेलिन्स टेस्ट फॉर टायरोसिन होता है। ठीक है, अच्छा अब आती है बात हमारे पास मेन टेंशन की, जो आती है हमारे पास सबसे बड़ी बात, एंड दैट इज़ योर वॉयलेट कलर अगर पॉजिटिव आ गया, दैट मीन्स प्रोटीन्स आ गई। हाथ पे गिनती करके हमारे पास क्या ही प्रोटीन्स होती हैं। एग्जाम्पल एल्ब्यूमिन हो गई, एग्जाम्पल ग्लोबुलिन हो गई, एग्जाम्पल ये 4 प्रोटीन्स हमें आइडेंटिफाई करनी थी। कैसीन हो गई और जेलेटिन हो गई। जेलेटिन इज फाउंड इन योर बोन्स, और हम जो चिली मिली की जेलीज खाते थे ना उसमें जेलेटिन होती थी, तो वो प्रोटीन एक होती है होल्डिंग द स्ट्रक्चर टुगेदर। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू गाइज दैट अगर अब मुझे ये 4 आइडेंटिफाई करनी है, प्रोटीन है मतलब कि या तो ग्लोबुलिन है, कैसीन है, एल्ब्यूमिन है, पेप्टॉन है, क्या है, आई वांट टू आइडेंटिफाई, आई एम गोना डू दैट। अब मैं हर किसी की कमजोरी पकड़ूंगी। कैसे कमजोरी पकड़ूंगी? पहले मैं टेस्ट करूंगी एसिटिक एसिड टेस्ट।
मुझे पता है केसीन प्रोटीन जो होती है उसका एक आइसोइलेक्ट्रिक पीएच होता है 4.6 पीएच। ये एक ऐसा पीएच है जिसपे उसकी वो डीनेचर हो जाती है। दैट मीन्स जब वो डीनेचर होगी तो मैंने क्या कहा था, व्हेन द प्रोटीन डीनेचर्स व्हाट इट डज, उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अगर मैंने एसिटिक एसिड उस सॉल्यूशन में डाल दिया और उसका पीएच कम कर दिया, 4.6 पे कर दिया, अगर उसमें केसीन प्रोटीन होगी तो वो डीनेचर हो जाएगी। मैंने उसकी कमजोरी को पकड़ लिया। जब वो डीनेचर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सिंपल है, उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब एक वाइट कोएगुलेंट बन जाएगा। अगर वो वाइट कोएगुलेंट बन गया तो एसिटिक एसिड पॉजिटिव हो गया, दैट मीन्स केसीन पॉजिटिव है। मैं उसका एक कन्फर्मेटरी टेस्ट न्यूमैन टेस्ट करूंगी, दैट्स इट, यू डोंट हैव टू गो इन द डिटेल्स ऑफ द न्यूमैन टेस्ट, पूछा नहीं जाता। देन हमारे पास आ जाता है अगर सपोज करो ये नहीं है, अब क्या करेंगे भाई, तो अब सिंपल सी बात है, एसिटिक एसिड तो हमने किया नहीं, हम अब पता करेंगे कि हमारे पास तो दो चीज़ें बाकी रही। एक हमारे पास बाकी रहा कि या तो देखो ग्लोबुलिन बचेगा या एल्ब्यूमिन बचेगा। अब क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, अब हम एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन की कमजोरी को पकड़ते हैं। ठीक है, सपोज करो कि हमने क्या किया, हमने वो जो सैंपल था प्रोटीन था, विदाउट एडिंग एनीथिंग, हीट कोएगुलेशन टेस्ट इज अ टेस्ट इन विच वी डू नॉट एड एनी मटेरियल, वी जस्ट हीट इट. Albumin and globulin are more sensitive to temperature as compared to gelatin and peptones, if it is visible to you guys. ठीक है, they are more sensitive to it. अब because of its sensitivity क्या होगा, ये जल्दी डीनेचर हो जाएंगे। जल्दी डीनेचर हो जाएंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब वाइट कलर का कोएगुलेंट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। मैंने इनकी कमजोरी पकड़ी, यहाँ पे मैंने इसकी कमजोरी पकड़ी थी। एल्ब्यूमिन और जेलेटिन जब आप एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन जब वाइट कोएगुलेंट बन जाएगा तो हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा रिजल्ट, और अगर नेगेटिव आ गया तो वो जेलेटिन और पेप्टोन्स होंगे। ठीक है, हमने अब क्या किया इसके लिए, अब तो ये पता चल गया ना कि चलो वाइट कोएगुलेंट बन गया, हमारे पास अब ग्लोबुलिन या एल्ब्यूमिन है। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ एल्ब्यूमिन है ग्लोबुलिन है, अब हमने दोनों की और कमजोरी पकड़ी है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, ये मेजॉरिटी टाइम्स में हम लैब में करवाते नहीं है। द रीज़न इज़ कि काइंड ऑफ इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल इनसे रिजल्ट्स नहीं आते। पहली चीज़ हमारे पास आती है, नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हियर, आई एम गोना अटैच द टेस्ट की स्लाइड्स आफ्टर द वीडियो। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दैट जो मैं बोल रही हूँ, तुम लोग आप लोग यहाँ से पढ़ के जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फुल सैचुरेशन टेस्ट क्या होता है हमारे पास, व्हाट वी डू इज़ हीट कोएगुलेशन टेस्ट में, अच्छा आफ्टर दैट क्या होता है हमारे पास, अब समझो बात को। मैंने कहा था हमारे पास एक प्रोटीन होती है, उसका अंदर का हाइड्रोफोबिक चीज़ होती है, बाहर से हाइड्रोफिलिक, एक शेल ऑफ हाइड्रेशन होती है। यही कहा था मैंने, टेरिटरी कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला था ना, बाहर से हमारे पास होगी हाइड्रोफिलिक और अंदर से हाइड्रोफोबिक होगी, मतलब बाहर एक शेल ऑफ हाइड्रेशन है। मैंने यहाँ पे फुल सैचुरेशन टेस्ट करना है विद अमोनियम सॉल्ट्स, NH4 सॉल्ट्स के साथ। ठीक है, NH4 सॉल्ट्स के साथ मैंने एक टेस्ट करना है। मैं क्या करूँगी, वो एक सॉल्ट है, मैं अपने स्टॉक में वो सॉल्ट डालूंगी अंटिल जब तक वो फुल सेचुरेट ना हो जाए। सेचुरेशन का मतलब पता है ना, तब तक डालूंगी जब तक वो पूरा डिजोल्व ना हो जाए, तक उसमें पूरा जब तक वो डिजोल्व और थोड़ा सा रह ना जाए अनडिजोल्व, तक मुझे पता चले कि ये सेचुरेटेड हो गया है। अब अमोनियम सल्फेट अमोनियम सॉल्ट क्या करता है, दे हैव द मोर पावर टू अट्रैक्ट वाटर एज कम्पेयर टू हाइड्रोफोबिक बॉन्ड ऑफ प्रोटीन। तो एल्ब्यूमिन फॉर एग्जाम्पल क्या करता है, उसकी जो हाइड्रोफोबिक के अराउंड शेल ऑफ हाइड्रेशन होती है वो लूजली अटैच्ड होती है आयनिक बॉन्ड से, बहुत लूजली अटैच्ड होती है। तो हमने क्या किया, अमोनियम सॉल्ट्स ने उसकी हाइड्रेशन छीन ली, हाइड्रेशन शेल छीन ली। अब ये क्या बचा, हाइड्रोफोबिक बचा। हाइड्रोफोबिक इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होगा तो हमारे पास एक फिल्ट्रेट बच जाएंगे, है ना, हमारे पास टुकड़े टुकड़े बच जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम वो फिल्ट्रेट टुकड़े टुकड़े कोएगुलेशन बन जाएंगे हमारे पास, मतलब वो इनसॉल्युबल हमारे पास क्या एल्ब्यूमिन आ गया। अब हम उसे फिल्टर आउट करेंगे तो जो मोटे मोटे कचरे थे, जो हमारे पास एक्चुअली एल्ब्यूमिन था, हमने उसको बाहर निकाल दिया। जो सोल्यूशन बचा दैट मीन्स उसमें कोई एल्ब्यूमिन नहीं था, वो प्रोटीन एल्ब्यूमिन नहीं था। अब हम अगर उसमें ब्यूरेट टेस्ट करते हैं तो क्या पॉजिटिव आएगा, कॉमन सेंस है। जब प्रोटीन उसमें एल्ब्यूमिन था तो मैंने ब्यूरेट करा था तो पॉजिटिव आ जाता। जब उसमें मैंने एल्ब्यूमिन की कमजोरी को पकड़ के एल्ब्यूमिन का फिल्ट्रेट कचरा निकाल दिया तो क्या सोल्यूशन जो पानी बचा उसमें एल्ब्यूमिन था, नहीं था, तो ब्यूरेट विल कम नेगेटिव। सिमिलरली हमारे पास जो ग्लोबुलिन है उसके लिए हाफ सेचुरेशन टेस्ट होता है, चीज़ वही होती है बट हम हाफ सेचुरेशन देते हैं उसे। ठीक है, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, यू टू रिमेमोराइज द नेम्स हियर एज इफ कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। थैंक यू सो मच।